বিকাল আপনাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে দুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবাস করছেন মাননীয় কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ দরদি মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির মন্ত্রিসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মাননীয় শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানজি। তিনি গতকাল সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় পৌঁছে অনেকগুলো মিটিং করেছেন। আজকে সকালবেলা তিনি অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সচিবালয় পার্শ্বস্থ জায়গায় বৃক্ষরোপণ করেছেন। যদিও শুধু অরণ্য সপ্তাহ নয়, মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহানজি তার প্রত্যেক দিনের কর্মদিবসের শুরুতে একটা করে গাছ লাগান। এই তথ্য আপনাদের জেনে রাখা দরকার রয়েছে। আমার সাথে রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ, সম্মানীয় ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী, সম্মানীয় দুধ কুমার মণ্ডল, রাজ্যমন্ত্রী অমিয় কিস্কু, শান্তনু প্রামাণিক এবং অশোক দিন্দা ছিলেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যের সর্বোচ্চ আধিকারিক পর্যায়ের আধিকারিকরা ছিলেন। মূলত কৃষিক্ষেত্রে, উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে এবং ফিশারিজ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, এই বিষয়গুলোতে আলোচনা হয়েছে এবং তার সাথে গ্রামোন্নয়নের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যেমন প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বিকশিত ভারত জি রামজি এবং লাখপতি দিদি সহ আমাদের ৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দিদি এবং বোনেদের নানা কল্যাণকর কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ৪টি জেলাতে প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কর্মসূচি যুক্ত করেছে। যেই জেলাগুলি হলো দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া। এর বাইরেও কেন্দ্রীয় কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রত্যেকটি কর্মসূচির সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। জুন মাসে মানরেগা যেটা কর্মসূচির শেষ সপ্তাহ ছিল, তার জন্য মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহানজির দপ্তর ৭০০ কোটি টাকা আমাদের দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ২৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তার জন্য অনুমোদন করে প্রথম পর্যায়ে ১০০০ কোটি টাকা তারা আমাদের দিয়েছেন। আজকে মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহানজি আমার এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষজির হাতে আবাস যোজনার ভেরিফিকেশন বা তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের আগামী দিনে যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো রয়েছে, তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার মৃত্তিকা, চাষযোগ্য মাটি, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা, এখানে কোন জেলায়, কোন এলাকায়, কোন মৃত্তিকায় কি ধরনের ফসল উৎপাদন করা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা। তিনি ৪টি নতুন ট্রেনিং সেন্টার এবং গবেষণাগার অনুমোদন দিয়েছেন। তার মধ্যে চুঁচুড়াতে একটি ধানের চালের ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থা অনুমোদন দিয়েছেন। মালদাতে আমের জন্য একটি ICAR এর 100 crore প্রজেক্ট ইউনিট অনুমোদন দিয়েছেন। এর বাইরেও ভুট্টা সহ, মাখানা সহ, আম সহ, লিচু সহ আমাদের উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে
ফুল এবং পান সহ নানা বিষয়ে ভারত সরকার এবং কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ ব্যবস্থা এখানে দেওয়া হয়েছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি এবং কৃষকদের আরো কিভাবে নতুন করে সাপোর্ট দেওয়া যায় সে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। আলু বীজ, জুটের বীজ, গাছ চারা তৈরির জন্য জুটের বীজ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ এখনো তৈরি করতে পারেনি। আলু বীজ পাঞ্জাব থেকে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ করতে পারেনি। তার জন্য তিনি দিশা দিয়েছেন। অনেক সময় লাগবে বিস্তারিত বলতে। আমি এক কথায় আজকের মিটিং কৃষিক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক মানুষ, প্রধানমন্ত্রী যাদের মাথায় ছাদ দেখতে চান, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ। আজকে দুটো বিষয় এখানে সুনিশ্চিত করেছেন মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহান। 125 দিনের কাজ, ইতিমধ্যে 2,56,00,000 কার্ড, জব কার্ড চিহ্নিত হয়েছেন। আরো যারা প্রাপক আবেদন করলে তাদের কার্ডও অনুমোদন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত তিনি আধিকারিকদের নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ হাতে কাজ অদক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে 300, সেমি স্কিল্ডের ক্ষেত্রে 450 এবং স্কিল্ডের ক্ষেত্রে 600 টাকা 125 দিনের কাজ। আর মাথায় ছাদের ক্ষেত্রে আজকে তো 1 লক্ষ বাড়ির স্যাংশন আমরা পেয়েছি এবং 20 জুলাই পর্যন্ত তালিকা তৈরির সময় ছিল। বর্ষা এবং ইত্যাদি দেখে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে 15ই আগস্ট পর্যন্ত বাড়ির তালিকা তৈরির জন্য তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। তাই আজকে আমরা তাকে विशेषভাবে धन्यवाद दिए मैं माननीय मंत्री जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। पूरा मंत्रिमंडल से की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उनका 2 दिन का प्रवास खास करके किसानों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, जो गरीब जनता है जिनको अब तक आवास, प्रधानमंत्री आवास का मौका नहीं मिला, उनके लिए, और हमारी जो माइग्रेंट लेबर से लेकर गांव का लोग काम करने के लिए उन्होंने इंतजार कर रहा था, उनको विकसित भारत जी राम जी के अंदर 125 दिन का काम करने का उन्होंने जो बड़ा स्कीम लाया है भारत सरकार मोदी जी का नेतृत्व में, उसके ऊपर आज बहुत पॉजिटिव उन्होंने गाइडलाइन दे दिया। पूरा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल आधिकारिक लोग आज इस मीटिंग से जो डिसीजन हुआ जमीन के उतारने का काम और हमारी जनता के बीच ये हर स्कीम का सुविधा जल्दी उनको मिले, इसके लिए हम काम करूंगा। मैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी को कुछ शब्द बोलने के लिए मैं मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कर्मठ, विकासशील और गतिशील मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय दिलीप कुमार घोष जी, कृषि मंत्री दूध कुमार मंडल जी, उद्यानिकी मंत्री कल्याण चक्रवर्ती जी, हमारे मंत्री साथीगण अमिया किसाकू जी, अशोक डंडा जी, शांतनु प्रमाणिक जी, अधिकारी मित्र और मीडिया के प्रिय मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन विकसित भारत बिना पश्चिम बंगाल के विकसित हुए नहीं बन सकता। पहले जब पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरा पर आते थे तो मन व्यथित होता था, आत्मा रोती थी, विकास के कार्य बाधित थे, केंद्र सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचती नहीं थी। लेकिन आज मन में बहुत संतोष है,
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, शुभेंदु जी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छूने का सफर प्रारंभ कर चुका है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, चाहे वो रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, गैस पाइपलाइन हो, 82,492 करोड़ रुपए के काम होने थे। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार के असहयोग के कारण जो काम बरसों पहले शुरू हुए थे वो काम कभी पूरे नहीं हुए, बाधाएं दूर नहीं की गई। लेकिन आज मैं शुभेंदु जी, आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 82,492 करोड़ के कामों की सारी बाधाएं आपने दूर करके बंगाल के विकास को नई गति दी है, दिशा दी है। तेजी से इंफ्रा डेवलप होगा, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता उसका हक और अधिकार मिले। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत केवल 9 महीने के लिए, मैं पूरे साल की बात भी नहीं कर रहा, मार्च तक के लिए, 31 मार्च, भारत सरकार ने, हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने जो राशि स्वीकृत की है वो 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, 8,508 करोड़। उसमें राज्य सरकार का हिस्सा मिलेगा ये 12,064 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये राशि 31 मार्च तक पंचायतों में दोनों काम, एक रोजगार देना, 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार। और भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा कभी आ जाए, कहीं अल्नीनो का प्रभाव और किसी जिले में दिक्कत हो जाए तो 50 दिन और एक्स्ट्रा देंगे ताकि गरीब को कभी पलायन ना करना पड़े। लेकिन रोजगार के साथ साथ हमारा जोर है गांव के संपूर्ण विकास पर। इतना पैसा जब गांव में जाएगा तो गांव के विकास के काम, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, तालाब, कई तरह के विकास के काम होंगे। आपदा से निपटने के काम भी किए जा सकते हैं। तो ये देख के मन को बहुत संतोष है। और वैसे ही मकान बने गरीबों के यहां, मैं फिर बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी दिलीप दा आपको, ग्रामीण विकास विभाग को भी। तेजी से सर्वे हो रहा है मकानों का। थोड़े बरसात के कारण यह बात आई थी कि 20 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा होना था जिनके कच्चे मकान हैं, तो उसको बढ़ा के आज 15 अगस्त किया गया है ताकि सर्वे का काम ढंग से पूरा हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मकान मिलने में देर ना हो, इसलिए दोनों काम, सर्वे भी चलेगा और सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके मकान देने में देर ना लगे, इसलिए अभी अंतिम रूप से 1 लाख मकानों की स्वीकृति अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दी गई है। तो आपका जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, आप मकान आवंटित करने का काम तत्काल शुरू कर सकते हैं ताकि गरीबों को मकान मिलने में देर ना हो। और वैसे ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, पश्चिम बंगाल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बने, इसलिए उनको बैंक लोन के लिए 245 करोड़ बैंक लोन का आवंटन और 50 करोड़ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का भी आवंटन किया गया है। पश्चिम बंगाल की जो पवित्र धरती है वो सस्य श्यामला है, बहुत उर्वरा है, बहुत उपजाऊ है। सरकार के बिना सहयोग के भी पश्चिम बंगाल का किसान उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। कई चीजों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। लेकिन अब जैसा शुभेंदु दा बता रहे थे, एक वैज्ञानिक कृषि रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप पश्चिम बंगाल का बनाने का काम भारत सरकार के आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने शुरू किया है। उसका प्रथम प्रेजेंटेशन अभी यहां हुआ है। स्टेट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के संस्थान हैं वो, और राज्य सरकार के
अधिकारी व्यापक कंसल्टेशन आपके मार्गदर्शन में करके, कृषि मंत्री जी भी हमारे बैठे हैं, उस रोड मैप को अंतिम रूप देंगे ताकि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, माटी, जल, बाकी चीजों की उपलब्धता के आधार पर हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। अब ये आश्चर्य था कि जूट पैदा पश्चिम बंगाल में होता है लेकिन बीज आंध्र प्रदेश से आएंगे, मक्का के, आलू के बीज भी बाहर से आएंगे, कहीं पंजाब से दूसरे। अब हम बंगाल को सीड का हब बनाएंगे, पूरे पूर्वी भारत के सीड का हब। ये फैसला भी किया, उसके लिए योजना यहां स्वीकृत करने का काम हुआ है। आलू बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड मक्का बीज उत्पादन के लिए, वैल्यू चेन सुदृढ़ करने के लिए हमारे MOU साइन हुए राज्य सरकार के साथ। हम यहाँ जो हमारे चिंसुरा राइस रिसर्च स्टेशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित करने में पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी आए थे, 4 योजनाओं को उनके हाथों लागू किया गया। और डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत भी फार्मर रजिस्ट्री बनाने का, फार्मर ID बनाने का काम पश्चिम बंगाल तेजी से कर रही है। उसके लिए भी राशि स्वीकृत की है, 26 करोड़ 88 लाख की। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत भी यह काम हो रहा है। मैं बधाई दूंगा शुभेंदु दा आपको, कृषि मंत्री जी को। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का आपने प्रारंभ किया है, उसके लिए भारत सरकार यहां से पूरा सहयोग और सहायता करेगी। और वैसे ही आपने राइस बाउल में पोषण संवर्धन और वैल्यू चेन के लिए, मक्का बीज उत्पादन के लिए, आर्किड और बागवानी के विकास के लिए जितनी आपकी पश्चिम बंगाल सरकार की आवश्यकताएं थी, उसके सबके प्रोजेक्ट स्वीकृत करने का काम अभी यहाँ पे किया गया है। 100 करोड़ रुपए, जैसे सुबेंदार ने भी अभी बताया, मालदा में हमारा मैंगो, लीची और बाकी फलों के अच्छे पौधे विकसित हो सके, क्लीन प्लांट किसान को मिले, उसके लिए भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। ऐसी अनेकों मुद्दों पर विस्तार से यहाँ बात हुई। फसल बीमा योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम बहुत तेजी से पूरा करने के लिए एक अभियान चलेगा, क्योंकि केवल 12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग पिछली सरकार के समय करते रहे, क्योंकि उनको क्रेडिट कार्ड बन के नहीं मिले। आज हमने नाबार्ड और बैंकों के प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया था। एक अवेयरनेस कैंपेन चलेगा जिसमें गांव-गांव जाके किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि किसान के पास अच्छी फसल पैदा करने के लिए राशि हो, साहूकारों के पास उनको ना जाना पड़े। और ऐसे ही हमारी चाहे फसल बीमा योजना हो या बाकी कार्यक्रम हो, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ किसान सम्मान निधि में पात्र नाम जुड़ जाएं, उसके लिए भी विशेष अभियान चला के, कई आपने जो बहुत अच्छा काम अभी जन कल्याण शिविर लगा के किया है, खेत बचाओ अभियान में किया है, उसमें भी कई नाम जुड़े, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और बाकी काम भी हम तेजी से मिलकर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आपके मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो जितने भी मुद्दे थे उनका हमने समाधान किया, और आगे भी पश्चिम बंगाल के विकास में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन की सरकार चलेगी, और पश्चिम बंगाल प्रगति और विकास में देश में नंबर 1 बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।